Dear student, welcome in this new lecture series of Power System 1, and here today we are going to discuss the topic single line diagram and electric supply system. So friends, हम लोगों ने लास्ट जब फर्स्ट यूनिट डिस्कस किया था वहाँ पर हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया कि व्हाट आर द what is the actual structure of a power system and what are the components are involved in a power system network or in the entire structure. So उसी के continuation में हम इस topic में discuss करेंगे कि how we can represent our power system, entire power system structure in a single line diagram, and what kind of electrical supply systems are used by in this structure to provide the power to the consumer. So the first thing अगर हम देखें that is the introduction part. So as you know the power system consists of what? It is a interconnection of a several component. पावर सिस्टम बेसिकली क्या है, इसमें कई सारे कंपोनेंट हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं. वो कंपोनेंट क्या क्या है? लाइक जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, योर लोड, ट्रांसमिशन लाइंस, सर्किट ब्रेकर्स एंड सम अदर accessories which are connected, integrated or interconnected with each other and make a complete power system structure. तो अगर हम बात करें power system structure को, so it can be classified is divided into the three major part. That is what? First one is your generation, transmission and third one is a distribution. तो जनरेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, जहाँ पर हम जनरेटिंग स्टेशंस की बात करते हैं और हम पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं. नाउ हियर हम लोग जो बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू योर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो द ऑब्जेक्टिव, और अगर हम बात करें व्हाट इज़ द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मीन्स टू मेक अ पावर सिस्टम स्ट्रक्चर. So the actual objective of power system structure means the making the complete structure is what? To provide the quality power and at the economic rate, means quality power to the consumer through these transmission and distribution lines. So ये हमारा actual objective है. So now one question in our mind, what do you mean by the quality of power? So the quality of power is what? Quality of power means जो हम कंज्यूमर को सप्लाई दे रहे हैं, जहाँ हम जिस एंड पे कंज्यूमर को कनेक्ट कर रहे हैं, इफ़ द कंज्यूमर गेट द पावर मीन्स द वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी एज पर देयर डिज़ायर्ड लेवल एंड दैट शुड बी अ कंसिस्टेंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर एट द कंज्यूमर एंड इफ़ इट इज़ सफिशेंट, तो हम कह सकते हैं कि हम जो पावर डिलीवर कर रहे हैं कंज्यूमर को, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ क्वालिटी पावर. सो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पावर सिस्टम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं. सो अगर हम बात करें कौन से दो मेजर फैक्टर हैं जो पावर क्वालिटी को एश्योर करते हैं. सो दैट देयर आर टू मेजर फैक्टर्स. वन इज़ योर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, मीन्स द सिस्टम शुड ऑपरेट एट द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, यानी सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी हो जो कंज्यूमर के लेवल पे आपको मिल रहा है, दैट शुड बी अ कांस्टेंट. सपोज लेट अस कि अगर हम इंडिया की बात करें, so in our country the value of frequency is what? That is 50 hertz, but some other countries they are using the 60 hertz supply frequencies also. And the second term is what? That is a voltage. तो voltage का जो level है, the voltage should be a consistent, means उसमें fluctuation नहीं होना चाहिए, deviation नहीं होना चाहिए, और जो availability of power, जो मैंने आपसे कहा कि कंज्यूमर को उसकी नीड के हिसाब से पावर मिलती रहे. सो इस पूरे टर्म को हम पावर क्वालिटी कहते हैं. नाउ अगर हम बात करें कि क्या पावर क्वालिटी हमेशा मेंटेन्ड है, मींस इट इज़ मेंटेन्ड थ्रू आउट द सिस्टम फॉर द ऑल द कंज्यूमर. सो ऑब्वियसली आंसर इज़ नो. वाई? बिकॉज ऑफ द वेरिएबल लोड फ्रॉम द डिमांड. डिमांड जो हमारा कनेक्ट है, दैट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट लोड, दैट इज़ वेरिंग विद द situation, that is varying with the as per the requirement. Similarly generations also varying. There are several factors to change the generation level into the system. तो generation में भी variation हो रहा है, and साथ साथ may be possible कि there is a power unbalance, power imbalance means imbalance between the generation and the demand,
may be possible the voltage is changing at the node due because of the several technical issues. तो इन सब रीज़न से क्या होगा कि आपका जो पावर क्वालिटी है दैट इज़ नॉट ऑलवेज मेंटेन, but the actual power practitioner they are trying to maintain the power quality for the consumer. So that is a major task in your entire structure. तो आप कह सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा वर्क है. तो नाउ कम ऑन द पॉइंट, द इलेक्ट्रिकल पावर की अगर हम कह रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर इज व्हाट, दैट इज द इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी डेवलपिंग कंट्री. अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वी आर द डेवलपिंग कंट्री, तो अगर किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमी को आप देखें तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वाइटल रोल इन देयर इकोनॉमिकल स्टेटस. सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, मीन्स बाय कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, we are going to analyze the entire behavior of a power system structure, and for that purpose we are using the what, single line diagram, or it is also known as one line diagram of a power system. इसको हम one line diagram भी बोलते हैं. So the purpose of representing a single line diagram and or one line diagram is what, इसका बस एक ही पर्पज़ है, because power systems are very huge, there are several number of component, not only the important major component, some associated peripherals are also connected with that one. तो इन सभी, तो अगर हम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पावर सिस्टम स्ट्रक्चर की एनालिसिस इट बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क. सो फॉर सिंप्लिसिटी वी आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पावर सिस्टम नेटवर्क इन अ फॉर्म ऑफ अ सिंगल लाइन डायग्राम. सो पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल लाइन डायग्राम और वन लाइन डायग्राम इज व्हाट, टू शो द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस मेजर कंपोनेंट. जब हम सिंगल लाइन डायग्राम प्लॉट कर रहे होते हैं किसी भी पावर सिस्टम स्ट्रक्चर का, सो वी आर कंसिडरिंग ओनली दोज कंपोनेंट those who are plays a major role in a power transmission and power, or you can say that in the supply system. यानी जनरेशन से डिमांड तक के बीच में जो पावर का ट्रांसफ़र है उनमें जो मेजर कंपोनेंट रोल प्ले करते हैं, वी आर कंसीडरिंग ओनली दोज मेजर कंपोनेंट लाइक जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा. एंड the information which is given into the single line diagram that is completely based on the requirement. हम कह सकते हैं कि जो information given है, like सर्किट में हम कौन सा कंपोनेंट चूज़ करेंगे, उनके किन रेटिंग्स को हम emphasize करेंगे, किस फॉर्मेट में रेटिंग्स को रखेंगे. सो all these things are based on the requirement ऑफ अ यूज़र जो उस सिंगल लाइन डायग्राम को प्लॉट कर रहा है या अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है. सो देयर आर टू स्टैंडर्ड एजेंसीज जिन्होंने सिंगल लाइन डायग्राम को डिज़ाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया प्रोवाइड कर रखा है, एंड सम स्टैंडर्ड सिंबल्स आर प्रोवाइडेड बाय दीज टू एजेंसीज, द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI and the Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE. They have published some standard for the power system component, means how you can represent a component in a single line diagram. So these are the symbolic representation of various important component in a power system structure. Power system structure में जितने भी important हैं उनमें से फर्स्ट है आपका मशीन और रोटेटिंग आर्मेचर. So by a simple circle you can represent a machine or a rotating armature, and sometimes it is also used to represent a dynamic load into the power system network. Similarly, this structure, this will be used for the two winding power transformer. जो two winding transformers हैं उनके लिए हम use करते हैं. Similarly, this structure will be used for the three winding power transformer, and fuses are represented by this structure. Now one line with one coil like this will be representing the your current transformer. Similarly, the potential transformers are represented by these two notations. You can represent a potential transformer here, and the ammeter and voltmeter can be simply represented जैसा आप सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. So these are the operators symbols. Apart from that, power circuit breakers means mostly oil circuit breaker, nowadays SF6 and vacuum circuit breakers are used. So the symbol of circuit breaker is simple, a square with the two terminals. Then
air circuit breaker, air blast circuit breaker. Nowadays we are not using the ABCD circuit breakers in the power system network, but the symbolic representation is this one. 3 phase 3 wire delta connection, just a representation of a delta connection, like star connection, star grounded. So these are the symbolic representation of the various component and the connection in a single line diagram. द ओवरऑल सिंगल लाइन डायग्राम हम इन कंपोनेंट इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर के हम अपने इंटायर सिस्टम के सिंगल लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट अस जस्ट टेक अ वन एग्जांपल. हियर यू कैन सी कि means in this entire structure there is a one generating station, and apart from these generating stations some transmission line, transformers, circuit breakers and the various load stations are connected with this one. And the transmission and at that means power supply having the different stages like a means major transmission line, then sub transmission level, then distribution line, or you can say that distribution level structures are here. तो आप देखो you can see here simply कि we have just connect the all the component in a systematic manner, like starting from the generator. We are connecting a generator with a transformer which is known as a generation transformer. So this transformer is known as generation transformer. Okay, and now one breaker is connected here. That breaker is known as your what? Generating station circuit breaker for the protection of this zone, generation zone. Now second side this vertical line, that is known as bus. Bus is actually what? It is representing a substation, or in a single line diagram it will be known as a node. एक ऐसा point जहाँ पर आप दो अलग अलग component को आपस में interconnect कर रहे हैं. So these are known as a bus in a power system language or the node. तो node के बाद आपने फिर circuit breaker connect किया, and now that circuit breaker is connected with a transmission line, main transmission line, by which you can transfer the power from the generating station to the consumer side. So till here the entire part is your generation and the transmission, and sometime what your generating stations are sometime connected directly connected with the distribution station, or some the second end some major consumers are connected. So the distribution, so these downward arrow representing the load station or the distribution corporation. Again circuit breaker, nodal bus. So this is the one stage where you are going to step down the voltage from transmission level to the sub transmission level. Now these sub transmission level having number of protection. आपको पता है कि मेजर प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है कंज्यूमर साइड में, क्योंकि मेजर फॉल्ट होने के चांसेस भी कंज्यूमर साइड पे हैं. सो द यू कैन सी हियर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर मीन्स ऑल द सेक्शन, ऑल द सेगमेंट्स आर कनेक्टेड विद द सर्किट ब्रेकर. तो इसका पर्पस ही यही है कि वी कैन प्रोक्योर सिक्योर द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फ्रॉम सब ट्रांसमिशन लेवल टू द कंज्यूमर लेवल. तो now sub transmissions level are connected with the some load stations. Similarly the second one is the distribution sub transformer, then distribution lines, and these lines are connected with the load. तो हम लोगों ने पहले भी इस तरह के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. Now on the same way we can add some more information in your single line diagram. For example here in the second case we have mentioned that which kind of connection at the generating station, means here you can see that ki the generator at is connected in a star grounded connection, यानी हमने यहाँ पर जनरेटर के कनेक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है. सिमिलरली द जनरेटिंग साइड मीन्स जनरेशन स्टेशन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन अ डेल्टा स्टार ग्राउंडेड कनेक्शन. At the second side it is a star grounded and delta connection. So the transformer connections are represented in this single line diagram. Sometimes ratings are given, sometimes the reactance of the various components are mentioned in this single line diagram. So जैसा मैंने पहले कहा कि जो single line diagram है that is not a standard थिंग कि आप किसी एक लाइन को एक सिस्टम को एक पर्टिकुलर वे से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एज पर योर रिक्वायरमेंट, इफ़ यू रिक्वायर टू एनालाइज द रिएक्टेंस ऑफ द इंटायर सिस्टम, तो आपको उसके रिएक्टेंस के वैल्यू को देना है. रिएक्टेंस कैन बी रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू और इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज फॉर्म. सिमिलरली नोडल वोल्टेज आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर एक वोल्टेज नोड पे क्या वोल्टेज होगा. और ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस मैंने पहले ही कहा
इसके अलावा लाइन की लिमिट्स मीन्स लाइंस का जो रेटिंग है दैट कैन ऑल्सो बी गिवन इनटू द टू टाइप्स. either you can define the line rating in a form of R plus means R plus minus jx means where R is the resistance of the transmission line and x is the reactance of the transmission line. So, line mostly plus minus we are representing, but most of the time the transmission lines having the more inductive reactance. तो इस तरह से बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी सिंगल लाइन डायग्राम के लिए जो आप आगे के टॉपिक्स में देखेंगे. सो दिस इज द ओवरऑल थिंग रिलेटेड टू द सिंगल लाइन डायग्राम. And on the basis of this basic understanding you can plot a detailed structure of any power system network. Suppose here it is a this picture representing a huge power system network where one end there is a generating station. Then again these generating stations are not only connected with the some sub transmission and the distribution, it is also connected with the transmission grid. So here means this is the area 1 you can say, and this side the area 2. So in area 1 there is a one generator, in area 2 there is again second generator, and both the generators are connected with the transmission grid. So it can be said that it is a interconnected power network जहाँ पर एक एरिया दूसरे एरिया से इंटरकनेक्ट हो रहा है. Now each area is connected with the sub transmission level here. So this kind of structure is given here, and this under this box we have represented a one distribution system. So distribution substation is represented here. तो ओवरऑल जो पर्पज़ है इस डायग्राम को शो करने का वो ये है कि बाय द हेल्प ऑफ दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम किसी भी पावर सिस्टम कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम नेटवर्क को सिंगल लाइन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर गोइंग देयर इज अ वन कंडीशन इज मैंडेटरी. If you are representing a power system structure in a form of a single line diagram, so it is mandatory that कि your system should be in a balanced condition, क्योंकि हमारा जो actual power system network है that is having a 3-phase supply system. और अगर 3-phase supply system को हम single line diagram से represent कर रहे हैं तो यहाँ पर ये condition mandatory होगा कि आपके जो सिस्टम में जो वोल्टेज है हमारा वो बैलेंस हो हर एक नोड पे. सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल लाइन डायग्राम. नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हाट योर सप्लाई सिस्टम एंड इट्स कंपैरिजन. सो आफ्टर सिंगल लाइन डायग्राम के बाद हम अगर बात करें तो दूसरा पार्ट आता है कि किस तरह का सप्लाई सिस्टम हम डिज़ाइन कर सकते हैं. सो देयर आर सेवरल मेथड बाय विच यू कैन design or develop a supply system or electrical supply system. So mainly on the basis of the signal, like if you either you have a DC power supply or the AC power supply. तो on the basis of signals हम या सप्लाई टाइप ऑफ सप्लाई AC और DC के नेचर पे हम उसके को कैटेगराइज करते हैं. सो अगर हम DC सिस्टम की बात करें, so in DC system it can be classified into the 3 types. DC 2 wire with one ended earth end, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें 2 वायर हो और यानी DC में क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा निगेटिव टर्मिनल होगा. सो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द अदर एंड द निगेटिव टर्मिनल इज व्हाट वन एंड अर्थ एंड, यानी निगेटिव को आपने अर्थ कर रखा होगा. सेकेंड DC 2 वायर विद द मिड पॉइंट अर्थ एंड, यानी कई बार ऐसे भी सिस्टम होंगे जहाँ पर पॉजिटिव एंड दिस साइड इज पॉजिटिव एंड जो मिडिल पॉइंट है जहाँ पर आप इनको आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं दैट पॉइंट विल बी अर्थ एंड. तो इसको हम प्रीवियस केस को बोलेंगे दैट इज अ सिंगल पोल DC सप्लाई सिस्टम, दूसरे को हम बोलेंगे दैट इज अ 2 पोल सप्लाई सिस्टम. इसी तरह से DC 3 वायर सिस्टम भी यूज़ किए जाते हैं, यानी आपने मिड पॉइंट को अर्थ ना करके मिड पॉइंट इज ऑल्सो ट्रांसफर. बट इनके अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है. फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस DC ट्रांसमिशन के लिए हम फर्स्ट 2 को यूज़ करते हैं, बट इन DC 3 वायर सिस्टम्स आर मेनली यूज फॉर द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस DC पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सिमिलरली द AC अगर सिंगल फेज AC सिस्टम की बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम
with the 2 wire with the 1 in earthen, then single phase 2 wire with the midpoint earthen यानी सेम DC के फॉर्म में, एंड सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम यानी हम यहाँ पर 3 वायर यूज़ कर रहे हैं. 2 फेज क्योंकि 3 AC सप्लाई में पॉसिबिलिटी है कि इधर यू कैन यूज़ द मल्टी फेज सिस्टम. तो यहाँ पर हम 2 फेज सिस्टम की बात करें, 2 फेज विद द 4 वायर एंड 2 फेज विद द 3 वायर सिस्टम. एंड सिमिलरली जो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है दैट इज़ अ 3 फेज AC सिस्टम. तो इसमें हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम और 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसको आप लोगों ने आई थिंक पहले भी आपने सुना होगा. 3 फेज 3 वायर मीन्स द डेल्टा सिस्टम एंड 3 फेज 4 वायर सिस्टम आर नेम एज व्हाट, स्टार कनेक्टेड सिस्टम. तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप के सप्लाई सिस्टम के. हम वन बाय वन इनका कंपैरिजन करेंगे कि विच वन इज़ मोस्ट सुटेबल, और यू कैन से दैट कि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द चूजिंग द प्रॉपर सप्लाई सिस्टम फॉर एनी एप्लीकेशन. सो व्हाट विल बी द सिलेक्शन क्राइटेरिया. तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा. सो इफ़ वी आर कंपेयरिंग द ऑल दी सप्लाई सिस्टम, तो कंपैरिजन का कोई ना कोई ग्राउंड होगा या कोई ना कोई बेसिस होगा. सो मेनली वी आर यूजिंग द 2 बेसिस हियर फॉर द कंपैरिजन द सप्लाई सिस्टम. वन कि व्हेन द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय अ ओवरहेड लाइन, एक तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ओवरहेड लाइन के थ्रू, दूसरा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू अंडरग्राउंड केबल्स. 2 तरीके से आप पावर को या सप्लाई सिस्टम यूज़ कर सकते हो. सो व्हेन यू आर यूजिंग द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो जो इंसुलेशन है वो बेसिकली क्या है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की थी कि जो हमारा कंडक्टर है और जो टावर है इसके बीच में हम इंसुलेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं. सो इस इंसुलेट कर रहे हैं क्रॉस आर्म और सपोर्टिंग टावर के बीच में, जहाँ पर हम कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं, इसके बीच में जो वोल्टेज है और उस वोल्टेज के बेसिस पे कितना कंडक्टर के रिक्वायरमेंट है, यानी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या रिक्वायर्ड है, कितना कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम में, तो उसके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग द पावर थ्रू अंडरग्राउंड 3 केबल, तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो है यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं. तो वन बाय वन हम देखते हैं. इफ़ द कंपैरिजन सेम पावर, हम यहाँ पर 3 एजम्पशंस लेंगे. फर्स्ट कि पावर सेम, आपका पावर सेम हो, यानी जब हम अलग अलग सप्लाई सिस्टम को लेंगे तो फर्स्ट केस लेंगे कि उनका जो पावर लेवल है वो सेम हो. दूसरा है डिस्टेंस सेम लेंथ की हो. थर्ड हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो लाइन लॉसेस हैं दे आर द सेम, क्योंकि तभी अगर जब तक हम इन पॉइंट्स को फिक्स नहीं करेंगे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे. सो द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन एनी कंडक्टर एंड अर्थ, यानी हम कह रहे हैं फेजर वोल्टेज जो है वो सभी सिस्टम के लिए सेम हो. तो अगर हम अलग अलग सप्लाई सिस्टम में ये चारों क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, सो वी कैन ईजिली कंपेयर द सप्लाई सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल हियर 2 वायर DC सिस्टम विद द 1 कंडक्टर अर्थिन. सो इन 2 वायर DC सिस्टम, वन इज़ द आउटगोइंग, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं एक आउटगोइंग है और एक हमारी इनकमिंग वायर है. एंड व्हाट हियर वन पॉइंट इज योर अर्थ एंड वन, यानी फर्स्ट केस हम ले रहे हैं. तो इफ़ वी आर टेकिंग वन थिंग हियर, द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर हम क्या ले रहे हैं, दैट इज Vm, एंड द पावर टू बी ट्रांसमिटेड क्या है, P. लोड करंट दैट विल बी व्हाट, I1 P बाई Vm. लोड करंट क्या होगा आपका, यानी करंट I1 हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट इज P बाई V1. इफ R1 इज द रेजिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं R1 इज रो L बाई A1. सो दिस इज योर रेजिस्टेंस. नाउ योर A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एंड दैट इज व्हाट, दैट मीन्स जो आपका R1 है यह आपका इस एरिया पे डिपेंड करेगा. सो अगर हम लॉस कैलकुलेट करें सिस्टम के लिए, सो लॉस विल बी व्हाट फॉर द 2 वायर 2I1 स्क्वायर R1, क्योंकि यहाँ पर 2 वायर हम यूज़ कर रहे हैं I1 एंड I1. सो 2I1 स्क्वायर R1, और इसको हम यहाँ से वैल्यू को I1 को पुट कर दें. सो यू विल गेट this equation which is represented here 2 P by Vm square rho L by A1. So now क्रॉस सेक्शन, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कह रहे हैं तो प्रीवियस इक्वेशन से हम ले सकते हैं कि A1 विल बी दिस वन, एंड वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ. तो 2A1L इज इक्वल टू व्हाट
4 p स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन W Vm स्क्वायर। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल मिल गया। अगर हम इसमें वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल कह रहे हैं तो हम इसको एक कांस्टेंट के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, सो दैट विल बी K। नाउ हम इस K के बेसिस पे कंपेयर करेंगे अपने सेकेंड सप्लाई सिस्टम को, कि सपोज अ सप्लाई सिस्टम वेयर मिड पॉइंट इज अर्थ एंड and the voltage across the midpoint means earth end point and the one line, and here it is Vm. So, the total voltage is what? 2 Vm. So, if we write the load equation, suppose I2 is the load current equation and corresponding line losses अगर हम evaluate करें, so you can see here the total line losses is what? P square rho L upon 2 A1 Vm square. तो previous case में हमने line loss evaluate किया एंड इस केस में भी हम लोगों ने लाइन लॉस इवेलुएट किया। इट इज़ अ वेरी सिंपल वन। लाइन लॉस इज व्हाट? 2I स्क्वायर लेना है यहाँ पर करंट की वैल्यू को पुट करके, और आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ इफ वी टेक द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ A2, तो P स्क्वायर रो L बाई 2 W Vm स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। सो अगर आप देखें तो एरिया इंटू लेंथ करने पे जो वैल्यू आपको मिल रही है, कैपिटल P स्क्वायर रो L स्क्वायर W वी एम स्क्वायर, जो कि आपका अगर K से कंपेयर करें सो दैट विल बी K बाई 4। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस केस है उससे 1/4 मटेरियल रिक्वायर्ड होगा अगर हम 2 वायर DC सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थिंग सिस्टम लें, तो 1/4 पार्ट यानी मटेरियल कम लग रहा है। तो आपको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सेलेक्ट करना है सप्लाई सिस्टम को। सिमिलरली इसी तरह से आप 3 वायर DC सिस्टम देख सकते हैं। इसी तरह सिंगल फेज 2 वायर AC सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विथ अ मिड पॉइंट अर्थिंग, पहले सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम लाइक दिस वे, एंड 2 फेज 4 वायर सिस्टम, यानी यहाँ पर हमने 2 फेज लिया और 4 वायर सिस्टम के टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। तो एवरी टाइम यू शुड कैलकुलेट द लोड करंट, जो आपकी मेन करंट है उसके बेसिस पे लाइन लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइन लॉस कैलकुलेट करने के बाद आप सेकंड उसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है वो मिल जाएगा, और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लें, तो इससे आप मटेरियल को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली 2 फेज 3 वायर सिस्टम एंड 3 फेज 3 वायर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड हियर, एंड 3 फेज 4 वायर सिस्टम यानी स्टार कनेक्टेड सिस्टम। तो ये ओवरऑल डिफरेंट सप्लाई सिस्टम है जो पावर सिस्टम स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू द डिफरेंट काइंड ऑफ लोड्स। बट यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि इन 2 फेज और 3 फेज AC सप्लाई सिस्टम वी शुड टेक द RMS वैल्यू ऑफ फेजर वोल्टेज। जो भी वोल्टेज आप लेंगे AC सिस्टम में वो RMS वैल्यू ऑफ फेजर वोल्टेज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 फेज सप्लाई सिस्टम है तो व्हाट विल बी द फेजर वोल्टेज Vm/√2, और उसका RMS वैल्यू क्या होगा? Vm/√2 डिवाइडेड बाई √2 यानी Vm/2, दैट इज द पर फेज RMS वोल्टेज। सिमिलरली फॉर द 3 फेज सिस्टम दैट इज Vm/6। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि AC DC के केस में कोई फेजर नहीं, केवल पॉजिटिव एंड निगेटिव है, बट AC के केस में आपको RMS वैल्यू पर फेज RMS वैल्यू आपको कंसीडर करना है फॉर कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू। So on the basis of that you can see that the total table, this one, these are the references. Thank you.